Assalamualaikum. So, all my followers, my YouTube family, my Instagram family, my Facebook family, they all demand for different languages. Like if I post it in Urdu, they say why is in Urdu, why is not Pashto. When I post in Pashto, they say why is in not Urdu. And it's really hard for me to make everyone happy. It's a dress, like a Eid dress I'm making for all my grandchildren, and I'm gonna obviously post one of the dress stitching and cutting because they're all gonna be the same. And inshallah I try my best to speak in Urdu, Pashto, English all together. But please, the one who don't understand English, the one who don't understand Urdu, Pashto, they just follow the action. So I'm gonna just like do with action and show you how I'm cutting the little girl dress and how I can make it. So let's begin. So this is a Maya dress. You can look, it's dirty as well because that's the perfect dress. You just took it off now. Yeah, I took it off now from her. I say I want this measurement. So this is a Maya dress. I'm gonna take body measurement and the frill measurement, okay? If you want to measure your child, you can measure your child from shoulder to waist, and from the waist to how long you want the dress, okay? So it's in two measurements. My first measurement is from waist to the end. So I want it exactly that long, which is, so for example, if your child measurement is 24 inch, in 24 inch you can measure how much the body you want. So if you want 9-inch body, then the rest is your frill, okay? So yoke and frill, this called yoke, this called frill, and then you're gonna give extra 2 inch to the frill for the hemming. अभी उर्दू में भी बता दूं तो अगर आपके बच्चे की मेजरमेंट है 24 इंच, तो आप उसमें 9 इंच रख लोगे योक के लिए, और बाकी का जो होगा वो आपके फ्रिल के लिए होगा, और फ्रिल के साथ आप एक्स्ट्रा 2 इंच रखेंगे मेजरमेंट के लिए. इसको मेजर कर लूँगी, जो कि अगर आप बच्चे के बदन से मेजरमेंट करेंगे तो मैंने ये लिया 16 इंच. अब 16 इंच के ऊपर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कर दूँगी, 18 इंच for hemming and for the stitch. So इतना मैं ज़्यादा कर लूँगी. ये हो गया because my width is quite long, so I just double it and this will be my frill. ये मेरी नाफिया का बेटी का ये जो अमाया है, इसकी ये फ्रिल हो गई है. ये देखिए, ये फ्रिल हो गई है, ठीक है. बस मुझे इतना ही खुला चाहिए, पर ये साइड जो है ये पीछे की तरफ आएगा क्योंकि यहाँ प्लेन कपड़ा है. हमेशा जो ये साइड होता है स्टिच का वो पीछे की तरफ ले आए. अब हम योक काटेंगे, योक यानी बॉडी काटेंगे. अच्छा, इसकी मेजरमेंट है अबाउट 11.5 इंच, पर मैं 12 इंच रखूँगी क्योंकि स्टिचेस में भी जाएगा, तो मैं 12.5 इंच रख दूँगी. मैं अभी 12 इंच यहाँ से बॉडी के लिए भी काट दूँगी. सो 12 इंच को नापती हूँ, ये 12 इंच हो गया. यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ. अब इसकी मैं ऐसे मेजरमेंट करूँगी. सो जो पीछे का होगा मैं इसको अब 4 टाइम फोल्ड करूँगी. सो अब ये देखें, अब मैं योक की चौड़ाई नाप लेती हूँ. So I'm going to measure how wide is the yoke. Now yoke is 12 inch wider as well, so 12 inch long, 12 inch wider, and half will be 6 inch, but then I need for the stitching and cutting as well, so I'll add another 2 inches. So instead of 6 inch, 12 inches all around, I mean one side of 12 inch, and when we double it is gonna be 6 inch, like one side is 6 and this side is 6. So it's 4 layer, 1 2 3 4, 4 लेयर हो गए हैं इसके. अब मैं इसकी
कटाई करूँगी। बच्चे के लिए हमेशा आप ऐसे करें कि बच्चे के लिए 2 इंच नीचे कर दें और 2 इंच यहाँ 2 इंच और यहाँ 2 इंच का निशान लगा दें और फिर गोलाई में वो काट दें। दोनों को एक साथ रख के वो गोलाई में काट दें। कट के और फिर इसको तिरछा करके काट दें ताकि ये तिरछा करके कट जाएगा। और अब 3 इंच शोल्डर रख के हाफ इंच। सो ये तो हमारी फ्रिल हो गई है, आगे पीछे की फ्रिल हो गई है। सो दिस इज आवर फ्रंट एंड बैक फ्रिल। This is the lining for the front and back frill lining, and that's what I cut. So I cut deeper neck to the front, and well, you can measure is 5-inch cutting. So measure from here to here for the 5-year-old. But because I take the measurement from the frock, so you can see I just follow that. And I leave like a half an inch for the sewing part. And again, this is the front neck, so it's deeper. I take the measurement from her old dress and I cut this. So मैंने पुराने ड्रेस के मेजरमेंट पे ऐसे गोलाई नहीं है, ये थोड़ा सा ओवल शेप है ना नाफिया। सो ओवल शेप का मैंने आगे का नेक काट लिया, ये नेक काट लिया और सेम फिर मैंने बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लाइनिंग के लिए भी कपड़ा काट लिया। तो ये देखिए, ये लाइनिंग के लिए भी। सो दिस इज द बैक एंड दिस इज फ्रंट। सो ये बैक और फ्रंट का लाइनिंग का कपड़ा हो गया, स्लीव्स के बगैर होगा ये, और ये फ्रिल के लिए। अब इस फ्रॉकों को 2 तरीके से मैं बनाऊंगी। एक की तो मैं यहाँ कप स्लीव्स लगाऊंगी, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी और ये बिल्कुल सिंपल बनेगा। पहले आपको इस सिंपल फ्रॉक का तरीका बनाती हूँ। अच्छा, ये बैक का जो है ना, यहाँ मैं एक कट लगाऊंगी, यहाँ कट लगाऊंगी कि ये बटन होल होगा, कि पीछे के बटन से यहाँ मैं बटन लगाऊंगी, तो ये भी आपको सिखा दूंगी। तो बस आपको ये फ्रंट बैक विद लाइनिंग, फ्रंट और बैक का विद लाइनिंग, ये 4 पीस हो गए और 2 ये पीस हो गए फ्रिल के लिए। ये टोटल हमारा ड्रेस है। तो चलो इसको बनाते हैं। आई वर्क फर्स्ट टू द फ्रंट पीस, द फ्रंट योक और बॉडीज। तो ये फ्रंट की बॉडी है, इसकी लाइनिंग के साथ मैं इसका गला जोड़ दूंगी। और जितने बच्चों के सिंपल फ्रॉक होते हैं उतने एलिगेंट लगते हैं। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्टिच के साथ मैं स्टिच लगाऊंगी। आपको नाफिया करीब से दिखा देती है, ये देखिए, ताकि ये गला बैठ जाए पीछे। देखिए, बगैर आयरन के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गला कितना प्यारा बैठ गया। ये देखिए, बगैर आयरन के बैठ गया। मैंने गला इसलिए बड़ा बनाया है, बच्चे का गला इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये बगैर स्लीव्स की ड्रेस है और समर ड्रेस है, तो इसलिए मैंने गला बड़ा बनाया है। नहीं तो बच्चे का गला यहाँ से डबल करके 1.5 इंच होता है और यहाँ से 2 इंच होता है, पर मैंने इसको 3 इंच रखा हुआ है। ये तो हो गया फ्रंट का। अब बैक का पीस ले लेते हैं। अब बैक के पीस में एक काम है। बैक का जो पीस है, हम इसको ऐसे मिडल में स्लिट कर देंगे। इसको ऐसे करके बिल्कुल मिडल में, ये ख्याल रहे कि सारा बराबर हो, मिडल में इसको ऐसे करके स्लिट लगा दे ताकि ये हमारे बटन के लिए होगा। ठीक है, और अब इसको सीते हैं। इसको सीने का तरीका ये है, ये उल्टा कर दें, हम ऐसे सिएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे और फिर ऐसे जाएंगे। सो ये गला मैंने यूं सी लिया। अब मैं इस जो मैंने स्लिट बनाई हुई है, जो कट किया है, उस कट की नीचे आ गई हूँ। बिल्कुल बराबर रखें
और यहाँ आके अपनी नीडल को अंदर छोड़ दें, घुमा लें, घुमा के फिर इस तरफ आ जाए और फिर इसको इस गले की तरफ आ जाए। तो ये आपने एक पीस में गला और स्लिट एक पीस में ऐसे बना दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है। अब आप देख लें अच्छी तरह से कि यहाँ बिल्कुल स्टिच के साथ हो, और इसको भी आप उसी तरीके से लाइन लगा दें ताकि ये भी बैठ जाए। तो ये गला है, इसके गले को भी लाइन लग। अब आप इसको सीधे तरफ कर दें। जब ये सीधी तरफ हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, तो ये सीधी तरफ ऐसे लगेगा, ठीक है। अब इस कोने में अपने सिजर को ही अंदर कर लें और ये ऐसे कर दें ताकि ये आपका ये बिल्कुल कोना सही बन जाए। ये यूं कर दें तो आपका कोना ये हो गया। अब अगर आप चाहें तो आप इसको आयरन भी कर दें तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके आपने जोड़ने हैं शोल्डर टू शोल्डर। अब शोल्डर टू शोल्डर कैसे जोड़ेगा वो आपको मैं बताती हूँ। सो ये साइड जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, जो फ्रंट, वो लगा दे और ये जो लाइनिंग है लाइनिंग के साथ लगा दें। सो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से शोल्डर टू शोल्डर, बैक का शोल्डर फ्रंट की शोल्डर से लाइनिंग को लाइनिंग के साथ, और सही जो कपड़ा है, जो मटेरियल है अपनी खूबसूरत मटेरियल, उसको उसके साथ, ठीक है। अब ये वाला साइड देखिए ये यूं हो गया है, ये ऐसे ये बन गया है। अब हम इस साइड को भी इस साइड से मिला देंगे। सो अगेन एम्ब्रॉयडर्ड मटेरियल को एम्ब्रॉयडर्ड मटेरियल के साथ, पर ये ख्याल रहे कि यहाँ ये जॉइंट बिल्कुल जॉइंट के ऊपर हो, कि ये आपका मैस अराउंड ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जॉइंट जॉइंट के ऊपर हो। नहीं, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे शोल्डर, ये देखिए कितनी नीटनेस आ गई है, बिल्कुल नीट बन गया है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का फ्रॉक बहुत नीट होना चाहिए। ये देखिए शोल्डर टू शोल्डर मैंने इसको सी दिया है। तो आपको ज़रा नीचे फ्लैट करके भी दिखा दूँ। ये इसका बैक बना हुआ है और ये इसका फ्रंट है, और शोल्डर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लाइनिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जगह को बनाना है। ये जगह कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाती हूँ। अगर आप स्टिचेस में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप बना लें। मैं आपको प्रेस करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बस जल्दी में बना रही हूँ और थोड़ी सी एक्सपर्ट हूँ, ज़्यादा नहीं। पर मैं आपको बताती हूँ कि अब आप शोल्डर कैसे लगाओगे। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो शोल्डर को यूँ कर दें कि ये यूँ कर दें और पिन कर दें। ये लाइनों को मोड़ लें और फिर इसको मोड़ लें और यूँ पिन करके लगा दें। पर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप साथ साथ ही इसको मोड़ते जाएं और इसको लगा, पर आप हमेशा मिडिल से शुरू करें, जैसे मैं मिडिल से शुरू कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल एज पे रखूँगी, ठीक है। मैंने एज पे बिल्कुल रख दिया है कपड़ा। इसको भी मैं मोड़ती जाऊँगी और इसको भी मोड़ती जाऊँगी और ख्याल रखूँगी कि दोनों कपड़ों में कोई खिंच ना आए। तो एक तरीका तो ये है, ये देखिए आपने बिल्कुल इसको ऐसे लगा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप कपड़ा लगा दें। अब मैं आसानी के लिए अगर आप पिन लगा दें तो बहुत इजी होगा, क्योंकि पिन लगाने से ये हो जाएगा कि आपका कपड़ा फिसलेगा नहीं। अगर आप बिगिनर हैं और अभी अभी सिलाई सीख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप इसको पिन कर दें।
पहले वाला मैंने आपको स्लीव दिखाया कि मैंने मिडिल से शुरू किया, और ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं एंड से शुरू कर रही हूँ। सो आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बना लो, ठीक है। अगर आप मिडिल से पर खींचना नहीं, कपड़े को खींच के नहीं रखे, दोनों कपड़ों को बिल्कुल एक जैसा रखें। अब ये देखें, ये आपकी बॉडी तैयार हो गई है। ये आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार है। अब इस बॉडी में मैं यहाँ भी निशान लगा दूंगी ताकि स्टिच कर दूंगी ताकि मेरे लिए आसान हो। तो ये आपकी बॉडी बन गई है। फैला दिया और अब मैं ये जो लाइनिंग जहाँ से, क्योंकि हम अक्सर एक साइज का काट लेते हैं लेकिन कभी कभी लाइनिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है या निकल आती है, तो अच्छी ये बात है कि आप उसको जोड़ दो और उसको ज़्यादा जो कपड़ा है वो काट दो। तो आपका सिर्फ ऊपर से नहीं, इन साइड से भी कमीज नीट होगी। योक एंड इट्स रेडी नाउ। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, अब आई एम गोना स्टिच दीज टू पार्ट्स। सो अभी मैं इन दो पार्टों को स्टिच कर दूंगी। तो मैंने तो मार्कर नहीं लगाया था, मैंने बस ये आप लोगों को कहा था कि मैंने आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया है। तो मैं देखिए आधा इंच ही, आप लोगों की मर्जी है कि आप कितना सिलाई के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं उतना छोड़ लें और ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट दें। इसको इसी तरह रहने दें। और अब आपका शुरू हो गया ये वाला, ये फ्रिल लगाना। अब फ्रिल के लिए अभी आप मेजरमेंट कर लें। तो मेजरमेंट है ये जो सारा आपको मैंने कहा था ये 12 इंच है, तो ये 12 इंच हमारी ये पूरी मेजरमेंट है, 12 इंच। अब मैंने इसको जो प्लीट्स देने हैं वो मैंने ऐसे देने हैं 12 इंच रह जाए, ठीक है। तो 12 इंच प्लीट्स के लिए अब ये देखिए, ये मेरा जो एक साइड का है ये 28 इंच है। तो अब मैं इसमें ऐसे प्लीट्स दूंगी कि ये मुझे 12 इंच का कपड़ा ऑल टुगेदर 24 इंच हो जाए। सो मैं अबाउट 1 इंच छोड़ दूंगी और मैं इसको ऐसे छोटी छोटी प्लीट्स लगा दूंगी। सो मैं बस छोटे ऐसे 1 फिंगर का फासला रखूंगी और 1 फिंगर के फासले से मैं ऐसे प्लीट्स लगाऊंगी। और मैंने 2 इंच की जगह यहाँ छोड़ दी है, तो 1 फिंगर के हिसाब से मैं प्लीट्स लगाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल फ्रॉक बनाने का तरीका है। फ्रिल काफ़ी बड़ा है तो आप बेशक ज़्यादा प्लीट्स लगा दें, लेकिन मैंने कपड़ा बिल्कुल नॉर्मल सा लिया है, एक विड्थ के बराबर लिया है, तो मैं इतने ही बनाऊंगी। भी लगा सकते हैं 1 इंच ऐसे निशान लगा दें और फिर उसको यू करके फोल्ड कर दें, एक निशान दूसरे निशान के साथ ऐसे फोल्ड कर दें तो भी आपका प्लीट बन जाएगा। ओके, नाउ I need this exactly. My yoke is 12 inch, but I need this 13 inch because I'm gonna stitch this part as well. So let's see, this is 13 inch. Yes, it's 13 inch. Okay, exactly 13 inch. Now, still I'm gonna measure this and my body and my yoke here as well. फिर भी इधर measurement कर दूंगी। मेरा yoke, मेरी body और मेरा फिर बिल्कुल बराबर है और ये मुझे stitching के लिए चाहिए। अब मैं यहाँ स्टिच लगा दूंगी। मैंने 1 इंच छोड़ा था स्टिच के लिए, सही तरफ से कर लेना है। ओके, फ्रिल को सही तरफ मोड़ ले और ये आप देख लें जो आपके बैक की ये लाइन लगी हुई है, इधर आपने एक निब लगा देनी है, इधर निब लगा दे। अब आपका जो यहाँ की स्टिचिंग है वो यहाँ की स्टिचिंग को आप इस कपड़े को बिल्कुल अंदर कर दें, आप फ्रिल को अंदर कर दें और
यहाँ ये रख दें। ये जो निब लगा हुआ है इसके साथ इसको मिला लें और इस तरह से इसकी सिलाई शुरू कर दें। आप अब फ्रिल को बॉडी के साथ सी रही हैं। ओके, ये देखिए, ये प्लीट्स है, ये बॉडी है और कपड़े को खींचे नहीं और आपने फ्रिल की जो स्टिच है उस स्टिच के ऊपर करना है ताकि आपका स्टिच बाहर से नजर ना आए। So now if you're not translating for me today, and I'm a bit tired now because I translate in English as well. But she's fasting, so it's an exemption for her. Okay, ये हमारी फ्रिल हो गई है। ठीक है, अब आपको दिखा दूं कि फ्रिल कैसी हो गई है। ओके, ये देखिए। So ये आपका पूरा all the body is done, the frill is done, everything is done, the armhole is done, the neck is done. Now we're gonna add this lining to the frill. So let's do that first. Again, it's a very similar size material, as same as the frill. So what I'm gonna do, I'll give exactly same 1 inch, exactly like that frill. Okay, so leave 1 inch and then one on one finger this one. I'm repeating my pleats. अब इसको मैं मेजर कर लूँ तो ये देखिए एग्जैक्टली 24 इंच ये बन गया है। अब इसको भी मैं, और अगर ऐसे करूँ तो एग्जैक्टली 12 इंच बन गया है। अब इसको भी मैं यहाँ ये लंबी सीन लगा दूंगी और अब इसको मैं क्या करूंगी, इस फ्रॉक को मैं ऐसे रख दूंगी। ठीक है, मैं इस फ्रॉक को अब ऐसे रख दूंगी और ये जो लाइनिंग है इसको मैं इसके अंदर रख दूंगी, लेकिन लाइनिंग को मैं सीधी तरफ रख दूंगी ताकि बाहर से ये स्टिच नजर ना आए। और इस स्टिच को मैं इसी तरह मिला दूंगी। ये देखिए, इसको वापस रख दिया और ये देखिए, ये स्टिच इधर से नजर आ रहा है, ये स्टिच इधर से नजर आ रहा है। और अब मैं इसको सिलाई करना शुरू कर दूंगी। ये मेरा लाइनिंग अब लग रहा है। इसको भी आप रफली मेजर कर ले कि आपका ये देखिए बिल्कुल पूरा है। और स्टिच के ऊपर स्टिच करें। जहां मेरा पहला स्टिच लगा हुआ है मैं वही स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल लाइनिंग भी पूरी की पूरी। अब इसको मैं, ये देखिए, मैं इसको सही तरीके से कर लूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी कितनी सही तरीके से ड्रेस बन गई है, पर अभी हैम भी बाकी है। अब ये देखिए, ये तो मैं रोशनी कर देती हूँ। ये तो इसका फ्रंट है। ठीक है, ये देखिए फ्रंट से सफाई आप देख लें। माफिया आप दिखा रहे हो ना, सो लो। पर अभी मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ कि बैक से भी कितना खूबसूरत बन गया है। सो बैक से भी आपको कोई स्टिच नजर नहीं आ रही है। ये इसका, ये देखिए सब कुछ अंदर छुप गया है। ये देखिए, ये लाइनिंग ने अंदर सब कुछ छुपा लिया है। सो ड्रेस तो अब रेडी हो गया है, लेकिन अब हमें इसकी हेमिंग करनी है। और इसको मैं डबल करके इस लाइनिंग की सिलाई कर दूंगी। डबल करके सिलाई करने से फ्रॉक हैवी सा लगता है, तो बहुत प्यारा लगता है। अब मैं इसको डबल करके सिलाई करूंगी।
देखिए ये मेरी लाइनिंग की सिलाई हो गई है। और अब मैं अपने फ्रिल की जो मेरा सही वाला कपड़ा है उसकी मैं सिलाई कर दी। देख ले लाइनिंग अंदर से बिल्कुल हाइड है, इतनी मेरे पास गुंजाइश है। ये देखिए पूरी इतनी मेरे पास गुंजाइश है। मैं इतने कपड़े की हेमिंग कर दूंगी और इसको भी मैं इसी तरह डबल करके सिलाई कर दूंगी। और अब मैं एंड पे आ गई हूँ। सो मेरा ड्रेस तैयार है लिटरली नाफिया 20 मिनट 20 मिनट में। और ऐसा ड्रेस आप बाहर से लें तो कम से कम 40-45 पाउंड का होगा। क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट टाइनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप whenever you make your dress, make sure your ironing is perfect as well. This is very important. Iron your yoke, then your body. All the thread need to come out, especially this seam. Always iron the seam. It's supposed to be ironed. And the hemming. So it's very important कि आप hemming को ऐसे कर लें, क्योंकि इससे कमीज़ बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपकी लगेगी। हमारा ड्रेस लिटरली 20 मिनट में हमारा ड्रेस बन गया है। ये देखिए। और यह मैं एक बटन लगाऊंगी, पर मेरे पास हुक है, मैं हुक लगा दूंगी यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है, आप लूप भी लगा सकते हो, बटन भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे हुक लगाना है। सो यहाँ पे पीछे की नेक पे यहाँ मैंने ये नीडल से कर दिया है, अभी बंद कर दिया। मैं यहाँ पे वो लगाऊंगी, हुक्स जो होते हैं उसको हुक है, मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी तो वो आसान होता है। नहीं तो मैं कभी कभी वो टिच बटन भी लगा देती हूँ, वो फास्टन बटन उसे कहते हैं। कभी कभी मैं लूप लगा के कपड़े का यहाँ लगा देती हूँ, तो वो मैं यहाँ लगा दूंगी। और सो ये मेरा फ्रॉक तैयार है अमाया के लिए। और अभी 2 मैंने और भी बनाने हैं, उनका थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँगी, एक कप सी स्लीव्स लगाऊंगी। तो ये मेरा फ्रॉक तैयार है, आप खुद देख लें। और ये फ्रॉक कितने में बना है ये, क्योंकि ये कपड़ा 12 पाउंड गज था, पर मुझे सिर्फ 3 पाउंड मीटर का ये कपड़ा मिला है और 1 पाउंड का लाइनिंग मिली है। 4 पाउंड में मुझे इतना प्यारा खूबसूरत ड्रेस बन गया है। तो आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए। बस मेजरमेंट का ख्याल रखें कि शोल्डर से वेस्ट तक मेजरमेंट और वेस्ट से लेंथ तक मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट आपको चाहिए। और बाकी आप उनके ओल्ड ड्रेस के मुताबिक आर्म होल काट लें, ओल्ड ड्रेस के मुताबिक आप बेशक काट लें, नहीं तो मैंने मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन की हुई है। सो दिस इज़ माई ड्रेस। जो हरी में उसके मैं स्लीव्स भी फ्रॉक के साथ लगाऊंगी, तो मैंने स्लीव्स को इस तरीके से काटा। ये देखिए यहाँ बिल्कुल एक चोंच बना के ऐसी स्लीव्स काटा। अब इसके साथ लाइनिंग काट के मैं यहाँ ये सारा जोड़ दूंगी, आपको दिखाती हूँ। सो पहले मैंने ये वाला हिस्सा जोड़ के ऐसे करके जोड़ के इसको उल्टा कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ऐसी सिलाई लगा रही हूँ। एग्जैक्टली अमाया के ड्रेस की तरह बना ली है, पर यहाँ मैं एक निब लगा दूंगी और एक यहाँ, इन 2 जगहों पे मैं निब लगा दूंगी। और मैं स्लीव्स को ऐसे रख दूंगी। ये मेरा वो स्लीव्स है जिसको मैंने लाइनिंग लगा दी है, इसको मैं वैसे रख दूंगी और इस निब से शुरू करके इसको ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स देके मैं सीती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वो स्लीव्स को यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, ये इस तरह का हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ लगा दिया। ये जो स्लीव्स था जो मैंने सिया था उसको यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। और स्लीव्स की शेप ऐसी थी, ठीक है।
स्लीव्स की शेप ऐसी थी, मैंने ये मिडिल में रखा शोल्डर के ऊपर और इसको यहाँ से जोड़ के प्लीट्स दे दिए और ये स्लीव्स की शेप, ये मेरी स्लीव्स है। अब ये ऐसी हो गई है। ये स्लीव्स ना होगा, ये यहाँ खाली है, सिर्फ हाफ वे से मैंने शुरू किया है। और अब मैंने एक आड़ा कपड़ा काट लिया जिसको मैं अब इस स्लीव्स के साथ जॉइंट करूँगी। तो मैं इस यहाँ से शुरू करूँगी और यूँ जाके ये सारा जॉइंट कर लूँगी। सो आई स्टिच द material. Now I'm gonna turn this material like this and either hand hem or either you can stitch it, but if your stitch is gonna show from here, so it's better you hand hem. I'll show you how it's look. बिल्कुल अमाया की ड्रेस की तरह मैंने पूरी बॉडी बनाई। बॉडी बना के आपको मैंने दिखाया कि मैंने ऐसी स्लीव्स लगा लिया। इस स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से आड़ा कपड़ा लेके वो आड़ा कपड़ा लगा दिया। अब ये आड़ा कपड़ा मैं ऐसे करके यहाँ पर वही स्टिच लगा दूँगी जो जिससे कपड़ा नीचे बैठ जाता है, तो वही स्टिच लगा दूँगी। इससे क्या होता है, तो उल्टी तरफ से ये कपड़ा बहुत नीट बैठ जाता है। ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे करके थोड़ा सा नीट हेम कर दूंगी। ये नीट सा हेम कर दूंगी ताकि ये सारा अंदर से जितनी भी रफ चीज़ें हैं वो छुप जाएं, कि नज़र ना आए। ये पर इसके लिए आड़ा कपड़ा लगाना ज़रूरी है। आड़ा यानी कि सिलाई, ये लगा के अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आप काट भी सकते हो, तो ज़्यादा बल्कि नहीं होगा आपके लिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट दो थोड़ा थोड़ा सा। और अब इसकी मैं ये देखिए, ये स्लीव्स ऑटोमेटिकली, लेकिन ये आधा स्लीव्स, ये इसको कप स्लीव्स कहते हैं। और ये मैंने पूरे आर्म होल पे नहीं लगाया। आप देख लें कि पूरा आर्म होल यू है और ये स्लीव्स ऐसे बनेगा। ये बहुत प्यारा लगता है बच्चों की शोल्डर पे ऐसा। और ये देखिए, अब इस कपड़े को नीचे करके मैं हेम करूँगी, हैंड हेम, ताकि इस तरफ से बखिया नज़र ना आए। तो मैं इसको सारा हेम करके आपको दिखाती हूँ। ये नाउ ताशा गो राउंड। तो ये ड्रेस है जो अमाया का है। वेट है, आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।